હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા બધાનું સ્વાગત છે તમારી પોતાની YouTube ચેનલ જેનું નામ છે નારાયણ ક્લાસીસ ઇન્ડિયા। આજે આપણે લોકો ગાઈસ કરી રહ્યા છે ઓસી ની અંદર આપણું જે ચેપ્ટર છે એને કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ કોમ્યુનિકેશન ઈ કોમર્સ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ। એના માટે આપણે લોકોએ ગઈકાલે થોડી નોટ્સ પણ લખી હતી કે ભાઈ કોમ્યુનિકેશન છે એનું પ્રોપર મીન્સનો આપણે યુઝ કરવો જોઈએ, એને કોમ્યુનિકેશન કહેવાય, બરાબર છે। એમાં ટુ લેટિન વર્ડનો ઈ કોમ્યુનિકેશન શબ્દ છે એ બનેલો છે, બે લેટિન વર્ડ છે। પહેલું લેટિન વર્ડ હતું કોમ્યુનિસ અને બીજું હતું કોમ્યુનિકેર। આ બેનો મતલબ થાય છે ટુ શેર કોમન, એટલે કે કોમ્યુનિસ અને કોમ્યુનિકેર એનો મતલબ શું થાય છે? ટુ શેર કોમન। ધીરે ધીરે આ વર્ડ પ્રચલિત થયો અને શું થઈ ગયો? કોમ્યુનિકેશન। આ જે કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ છે કેવી પ્રોસેસ છે? ટુ વે પ્રોસેસ। ટુ વે પ્રોસેસ શું કામ ને? કારણ કે એક મેસેજ સેન્ડ કરે છે, બીજો મેસેજ રિસીવ કરે છે, એને રીડ કરે છે, પાછો રિસ્પોન્ડ આપે છે, એટલે અહીંથી મેસેજ જાય છે, અહીંથી રિપ્લાય આવે છે, ધેટ ઇઝ ધ ટુ વે પ્રોસેસ। બીજું કોમ્યુનિકેશન છે એમાં બે ટાઈપ્સ આપણે કરી શકીએ, એક વર્બલ ને બીજું છે નોન વર્બલ। વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એટલે શું? તો કે જ્યારે કોમ્યુનિકેશન છે એ થ્રુ લેંગ્વેજ થાય છે, મેસેજ આર ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ લેંગ્વેજ, એને આપણે લોકો કહીએ છીએ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન। વર્બલ કોમ્યુનિકેશનના બીજા પણ બે ટાઈપ્સ કરી શકાય, એક રિટન અને બીજું શું બની શકે? એનો ઓરલ। નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એટલે શું? તો કે મેસેજ છે ટ્રાન્સમિટ થાય છે વિધાઉટ એની વર્ડ્સ, વિધાઉટ એની લેંગ્વેજ, એટલે કે મેસેજ કઈ રીતના ટ્રાન્સમિટ થશું? તો કે ભાઈ સિગ્નલ થી ટ્રાન્સમિટ થશે, કાં તો ફિઝિકલ એક્સપ્રેશન થી, ઓર આઈ એક્સપ્રેશન થી, ઓર સાયરન, ઓર ડ્રોઈંગ, ઓર મેપ્સ, ઓર સ્કલ્પચર્સ, whatever. This is called the non-verbal communication. Now here we have some definitions regarding the communications. The first definition, and it's a so easy definition, that exchange of thoughts, opinions and information. First of all we have to do the exchange. Which kind of the things that we are going to exchange? That is, first one is the thoughts, the second one is the opinion, and the third one is the information that we are going to exchange. But for the exchange we need some media. For the exchange we need some media, and how we can exchange the information? By through speech we can convince our information through speech, through writing, or through signs. This is called the communication. It's an easy definition, I think, my dear friends. Exchange of thoughts, opinion, information through speech, writing, or signs. This is called communication. This is the easiest definition. Now after that we have some process of the communication. कम्युनिकेशन है वो, ये जो प्रोसेस है वो स्टेप में ही होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या था? क्रिएशन ऑफ मैसेज। आपको किसी को कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, यानी कि मैसेज को क्रिएट करना होगा। मैसेज को क्रिएट करने के बाद आप लोगों को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए जिसके जरिए आप मैसेज किसको भेज सकते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल था वो बस का था कि हमें बस की इंक्वायरी करनी थी कि भाई राजकोट से वडोदरा की बस कितने टाइम में जा रहेगी, तो हम लोगों को वो जो मीडियम यूज किया, वो मीडियम कौन सा था? टेलीफोन था। तो टेलीफोन है वो प्रॉपर मीडियम था। बाद में जैसे ही जो इंक्वायरी टेबल पे बैठे हुए थे साहब, उसने कॉल रिसीव किया, और कॉल रिसीव करने के बाद हमने उसको बोला कि भाई वडोदरा की बस 8 बजे के बाद किस समय पे आ रही है, ठीक है। तो हमने उसको मैसेज सेंड किया, उसके बाद हमने उसको मैसेज दिया और उसने मैसेज सुना, यानी कि हमने जो बोला वो उसने सुना कि भाई 8 बजे के बाद राजकोट टू वडोदरा की बस कितने बजे की है, तो वो उसने सुना भी। सुनने के बाद उसने क्या किया? इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जो मैसेज सेंड किया है सेंडर ने, वो प्रॉपर वर्ड का यूज करे, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करे, जिस तरीके से जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो कैपेबल हो मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए। अगर आपने यहाँ मैसेज भेजा इंग्लिश में, आपने बोला इंग्लिश में, अगर सामने वाला टेबल वाला है वो इंग्लिश समझता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और मैसेज रिसीव करने के बाद वो इंक्वायरी टेबल वाले बंदे ने क्या किया? उसको रिप्लाई दिया कि भाई 9 बजे बस है, 10 बजे बस है, 11 बजे बस है। तो ये है प्रोसेस पूरी कौन सा? कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बाद हमें सीखना था इंटरनेट। हमको सिखाया क्या गया? इंटरनेट को सिखाया गया। सबसे पहले जो इंटरनेट है वो 2 वर्ड्स है उसमें से आया है। एक फर्स्ट वन है इंटरकनेक्शन और दूसरा था नेटवर्क। इंटरकनेक्शन यानी कि इंटरनेट का अगर हम मतलब निकाले तो इंटरनल नेटवर्क हो जाता है इंटरनेट का मतलब, ठीक है। अभी नेटवर्क किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ये नेटवर्क होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए, एक यहाँ ये जो
बुलेट्स देख रहे हैं वो कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। यानी कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। इंटरनेट में आपको बता दिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का भी, यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ बना है, ठीक है, ये ए कंट्री है, कंट्री ए है, उसने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। दूसरी कंट्री है बी, उसने अपना कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। अभी क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा, ये वापस नेटवर्क बनाएंगे, ये दो कंट्री ए और बी साथ में एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ द कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। द फर्स्ट वन इज द लेन, कैन, मैन, वैन। लेन का मतलब हो रहा था लोकल एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब हो रहा था कैंपस एरिया नेटवर्क, मेन का मतलब हो रहा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन का मतलब हो रहा था वाइड एरिया नेटवर्क। इन रिगार्डिंग मैंने सब कुछ लिखा ही था कि भाई अ सर्टेन प्लेस विद और विदाउट वायर, अगर कनेक्ट कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाएगा एट सर्टेन प्लेस, कोई एक ही प्लेस होगा। मानो कि ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, नारायण कॉम्प्लेक्स। तो नारायण कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिलें हैं, तो चारों मंजिल में एक मंजिल पे 100 कंप्यूटर्स मैंने लगाए, 100 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर 100, तो ये टोटल हो गए 400 कंप्यूटर। इन 400 कंप्यूटर को मैं इंटरनली कनेक्ट कर दूंगा, इंटरनली मैं उन लोगों को क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। बट मैंने कनेक्ट कहाँ किया, एक ही प्लेस पे। कौन सी प्लेस है, नारायण कॉम्प्लेक्स, तो इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर को नेटवर्क को कनेक्ट करना है, बट कहाँ, एक ही प्लेस पे। कनेक्ट कंप्यूटर एट सर्टेन प्लेस विद और विदाउट वायर। शायद मैं वायर का यूज कर सकता हूँ, अभी तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वायर का यूज नहीं करना, अभी तो हम सॉफ्टवेयर के यूज से ही सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कैंपस। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन कैंपस एरिया, यानी कि अभी ये मेरा एक बिल्डिंग था ना, अभी क्या है, मेरा एक पूरा सोसाइटी है, नारायण कैंपस, नारायण, ये एक बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग 2B है, ये मेरी बिल्डिंग C है, ये मेरी बिल्डिंग D है। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे यहाँ मानो के 400 कंप्यूटर्स यहाँ है, 400 यहाँ है, 400 यहाँ है, और 400 यहाँ कंप्यूटर्स लगाए गए, यानी कि टोटल मेरे कैंपस में कंप्यूटर्स कितने हैं, 1600 कंप्यूटर्स है। तो वो 1600 कंप्यूटर को मैं एक ही कैंपस के अंदर कनेक्ट कराऊं, यानी कि कोई बाहर वाला व्यक्ति इसका एक्सेस ना ले सके, तो इसको मैं बोलूंगा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। ओके, अभी ये होगा मेन यानी कि क्या, ये मेरा एक बिल्डिंग ए, ठीक है, कोई एक एरिया है, मैं यहाँ जूनागढ़ का एग्जाम्पल देता हूँ, कालवा चौक, एक मेरी बिल्डिंग है कालवा चौक, दूसरी मेरी बिल्डिंग है आजाद चौक, तीसरी मेरी बिल्डिंग है जोशीपुरा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 400 कंप्यूटर लगाए, यहाँ 400 कंप्यूटर लगाए, यहाँ भी 400 कंप्यूटर लगाए, बट एक ही सिटी के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, अपने सारे कंप्यूटर्स को एक साथ, भले अलग अलग प्लेस पे है, लेकिन मैं एक साथ उसको कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि दूसरा कोई इसको नहीं देख सकता, मेरे अपने बंदे उसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो कहाँ लगाया जाता है, ऑफ अ सिटी, एक ही सिटी के अंदर, यानी कि आप दूसरी सिटी में लगा नहीं सकते। दूसरी सिटी में लगाना है तो आपको कहाँ जाने पड़ेगा, वैन पे। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर कनेक्टेड विदाउट बाउंड्री और लिमिट्स, इसमें कोई बाउंड्री नहीं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं, आप कहीं ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, कहीं पे भी, ठीक है। समझ में आया, लैन, वैन, मैन, कैन। अभी जो वैन है ना, उसका भी 2 टाइप है, एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। आप ये तो आपको पता ही है। ग्लोबल वैन में क्या लिखा है हमने, WWW, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, पहले मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम। अदर कंप्यूटर सिस्टम से हम कनेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया रिवीजन, जो हमने लास्ट ऑफ द टाइम यानी कि लास्ट लेक्चर में लगाया। अभी खत्म ये नहीं हुआ, अभी ई कॉमर्स के अंदर ही हमें और
ज़्यादा पढ़ाई है, ये लोग बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि हम हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़े नहीं बट अपना बिजनेस 11-12 से ही स्टार्ट कर दें, यानी कि वो ई कॉमर्स करे, वो कुछ बिजनेस करे। आप लोग जानते हैं शायद कि एक एप्लीकेशन है मीशो एप्लीकेशन, उस मीशो एप्लीकेशन के जरिए आप अपना रिटेल बिजनेस लगा सकते हैं कपड़ों का, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी कर सकते हैं, वहां से परचेज करके थोड़े से ज़्यादा दाम में आप उसको आपके फ्रेंड्स के साथ सेल कर सकते हैं। इसके लिए मीशो एप्लीकेशन बहुत सारा हेल्प भी दे रही है, तो आई होप सो कि यू आर यूजिंग दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ई कॉमर्स कंसेप्ट, ठीक है। नाउ ये कुछ हमने सीखा था, सर्च इंजन किसको बोलते हैं ये तो पता है ना, ये हमने सब कुछ सीखा था। तो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करके देगा वो सर्च इंजन। ब्राउजर किसको बोलते हैं, फायरफॉक्स है, वो सब ब्राउजर है, ठीक है। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, वो ब्राउजर है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सबसे पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, अभी वो बंद हो चुका है और उसका कुछ नया नाम आ चुका है। ये अपना है ना माइक्रोसॉफ्ट, ये उसका ब्राउजर ही है। माइक्रोसॉफ्ट एज देखा, ये नया ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इसको खरीद के माइक्रोसॉफ्ट एज बना दिया, ठीक है। तो ये भी अपना एक ब्राउजर है। चलो अभी आ रहा है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ ठीक है मैं नोट पे ही लिखता हूँ अपनी नोट्स पे ही। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक commerce. Now okay everyone, in which trading is done by electronic gadgets and medium. मैंने बोला था कि ई कॉमर्स में क्या होता है, तो कि ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइस। आपको कुछ परचेज करना है, कुछ सेल्स करना है, ठीक है। तो आप कहां से परचेज कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन परचेज करना है, अभी क्या चल रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है। तो आप वो लोग आपको बेचते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल पे दिखाते हैं। आप खरीदते हैं कहाँ से, मोबाइल से खरीदते हैं। तो ये हो गया ई कॉमर्स, इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो पे आप लोग डिशेज ऑर्डर करते हैं, तो वो सब हो जाता है द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। All the process of this e-commerce such as purchase, selling, advertisement, comparison with other product, transfer of money, etc. are made by electronic gadgets. इसके रिगार्डिंग मेरे को आपको कुछ समझाना नहीं है, बस आप लोग फील ही कर सकते हैं कि हम लोग अमेजोन से परचेज करते हैं तो क्या होता है। परचेज भी वहां से होता है, अमेजोन वाले सेल्स भी वहां से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कोई प्रोडक्ट का साइड में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं कि भाई एक अमेजोन की साइट पे ही कंपैरिजन हो रहा है कि भाई एक सेलर है वो 299 में प्रोडक्ट बेच रहा है, वही सेम प्रोडक्ट बी सेलर है वो 300 में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट सी सेलर है वो 250 में बेच रहा है, तो कंपैरिजन भी वही हो जाता है। एंड अगर आपको ये कोई प्रोडक्ट है वो परचेज करे तो उसका जो पेमेंट करना है वो भी कहाँ से करना है, इलेक्ट्रॉनिक ही करना है, हमको उसको कैश देना नहीं है। हम क्या लगाएंगे, अपना वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर उसमें डालेंगे, अपना ओटीपी डालेंगे और पैसे वहां हमारे अकाउंट में से कट हो जाएंगे और जिसने बेचा है हमको उसके अकाउंट में, अमेजोन के अकाउंट में चले जाएंगे। तो पेमेंट भी कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है। मीडिया लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विस, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए क्या हमें यूज करना है वो भी आपको पता है। सबसे पहले अगर आपको नेट से कुछ परचेज करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। सामने वाला अमेजोन वाला होगा तो उसके पास क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा जो सारी वर्ल्ड में सब जगह कनेक्ट होगा। बाद में ईमेल सर्विस होगी। ईमेल सर्विस क्यों चाहिए, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट को परचेज किया है तो वो प्रोडक्ट का बिल है वो डायरेक्टली आपके ईमेल में आ जाता है, तो ईमेल सर्विस भी चाहिए। बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चाहिए, अगर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट तो करना ही होगा, कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो जो पेमेंट करना है वो भी बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करना है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए किसमें, ई कॉमर्स में। Buying, selling, delivery of goods, payment of money by professional unit have become easier due to e-commerce.
ई कॉमर्स के जरिए क्या हो गया, सब कुछ इजी हो गया। आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अगर कोई बंदा है जो जूनागढ़ में रह रहा है, उसके पास कुछ टैलेंट है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो वो सेल करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो सेल भी कर सकता है। प्रोडक्ट की डिलीवरी भी इजीली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने वहां ऑर्डर भेजा, 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 डेज के अंदर आपके यहाँ ऑर्डर आ जाता है। बाद में मनी जो है वो भी इजीली ट्रांसफर हो जाता है हमारे बैंक अकाउंट्स में से। तो ये प्रोफेशनल यूनिट्स है वो बिकम इजियर हो चुका है ड्यू टू ई कॉमर्स। ऑल्सो टाइम और एक्सपेंडिचर ऑफ कस्टमर्स फॉर बाइंग हैव बीन रिड्यूस। जो टाइम है, जो एक्सपेंडिचर है, वो भी कस्टमर का क्या हुआ है, रिड्यूस हो रहा है। आप लोगों को फील कर ही रहे हैं कि जब से ई कॉमर्स आया है तब से हमें बहुत सारी प्रोडक्ट है वो बहुत ही लेस प्राइस में ऑनलाइन मिल रही है। Thus there are many advantages of e-commerce, यानी कि e-commerce के बहुत बड़े फायदे हैं। The whole process of buying selling has become easier and faster in comparison to system of traditional business। जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसकी कंपैरिजन में अगर ये बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस देखो तो क्या है, बहुत ही इजी और फास्टर है ड्यू टू ई-कॉमर्स। बिजनेस कैन बी डन एट एनी टाइम प्लेस विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स। अगर किसी को रात को बंदे को 2 बजे मन में ख्याल आया कि रात को 2 बजे मुझे आईफोन खरीदना है, तो वो क्या करेगा, अमेजोन की साइट पे जाएगा, आईफोन का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, कहीं से भी और किसी भी टाइम पे वो परचेज कर सकता है। मेनी एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, फोन कॉस्ट, प्रिंटिंग वर्क आर रिड्यूस बिकॉज इंटरनेट। इंटरनेट के आ जाने से क्या हुआ कि सबसे पहले लिखो कि भाई अगर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था तो उसमें क्या था, हमें एडवर्टीजमेंट करनी थी तो क्या करना होता था, पैम्पलेट्स लगाने होते, पैम्पलेट्स बांटने होते थे, होर्डिंग्स लगाने होते थे, तो वो कॉस्ट रिड्यूस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट रिड्यूस हो गया। बाद में किसी को अगर कस्टमर को आपको समझाना था, फोन करके समझाना होता था, तो वो कॉस्ट कम हो चुकी है। कॉस्ट, कभी किसी कस्टमर से आपको समझा कॉरेस्पॉन्डेंस करना था तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पोस्ट उसको लेटर लिखते थे। प्रिंटिंग वर्क, बिल निकालना पड़ता था तो बिल का भी कुछ कॉस्ट आता होता, तो ये सारी कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट, कॉस्ट भी कम हो चुका। एंड टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो चुका, क्योंकि अगर आप घर में बैठे आपको मन हुआ कि भाई चलो मेरे को एक कुर्ता लेना है, तो कुर्ता आप मार्केट में जाएंगे तो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, आपका वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जाएगा। बट अगर आप लोग यहीं से ही अपने ही मोबाइल से ऑर्डर कर देते तो 1 या 2 दिन में अपने घर पे आ जाएगा, और वो भी रिजनेबल कॉस्ट में। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेटर एंड क्विक सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को ये क्विक और बेटर सर्विस दे रहा है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर बाय इंटरनेट, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की वजह से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो चुका है। Price of product, quality of goods and other questions can be solved easily due to easy interaction with customer। अगर आपके पास इंटरनेट है तो वो अमेजोन कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी है, जो कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा वो फट से रिजॉल्व कर सकती है। सॉल्यूशन टू सर्विस और गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हैज बिकम फास्टर। नाउ फील्ड, अगर ई कॉमर्स है उसका फील्ड क्या, on the basis of party involved in provide activity and services provided by e-commerce, the scope of e-commerce services can be classified as, सबसे पहले B2C, business to customer, B2B, business to business, C2C, customer to customer, and C2B, customer to business। यानी कि मैं लिखूं scope of e-commerce, scope of e-commerce, यहां हम बी के लिए लिखेंगे बिजनेस और सी के लिए क्या लिखेंगे, कस्टमर्स। ठीक है, बी के लिए बिजनेस और सी के लिए कस्टमर। सबसे पहले है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। सर ये क्या, ये ट्रेडिंग का टाइप्स है। ई कॉमर्स के जरिए आप इस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इजीली सिखाता हूँ बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कोई बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड करना चाहता है तो वो हो गया बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि अमेजोन। ठीक है, चलो B2C। In this there is a seller at one and a customer at other end। एक सेलर होगा और एक क्या होगा, कस्टमर होगा। द सेलर, यहाँ सेलर और यहाँ होगा कस्टमर। द सेलर सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट। एक वेबसाइट के जरिए वो इंटरनेट की मदद से अपने प्रोडक्ट
जो सेलर है वो कस्टमर को सेल करेगा। कस्टमर कैन प्लेस देयर ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। क्या करेगा, कस्टमर अपनी चॉइस की प्रोडक्ट है उसका वो ऑर्डर देगा कहीं से भी किसी भी टाइम पे। द सेलर सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट एनी मिडल मैन। अभी सेलर है वो क्या करेगा कि अपनी प्रोडक्ट को सोल्ड करेगा डायरेक्टली टू द कस्टमर्स विदाउट एनी मिडल मैन। यानी कि अगर क्या है ना कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या था, मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता था, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को गुड्स देता था, होलसेलर रिटेलर को देता था और रिटेलर किसको देता था, कस्टमर। तो वहाँ चेन बहुत बड़ी थी। अभी यहाँ चेन बड़ी नहीं है, बस यही एक चेन है। बिजनेसमैन है वो कस्टमर को डायरेक्टली माल देगा, ठीक है। द बायर इज एन इंडिपेंडेंट कस्टमर। जो प्रोडक्ट परचेस करा है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंड रहेगा नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। ऑनलाइन शॉपिंग है वो आइडियल एग्जांपल है इस टाइप का, यानी कि एग्जांपल इसमें लिखो अमेजॉन। इन दिस प्रोसेस परचेजिंग सेलिंग आर वेरी फास्ट एंड इजी। Besides retail selling, B2C includes many service like online banking, transportation। इसमें आपने ऑनलाइन बैंकिंग भी मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल सकता है। यानी कि बैंक है वो आप लोगों को सर्विस दे रही है ऑनलाइन, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। ये है मॉडल, इसको मॉडल कहा जाता है ऑनलाइन शॉपिंग का। इसको आईटी की जो परिभाषा है, जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें को मॉडल बोला जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग का मॉडल। उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस। कभी कभार क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स होता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पे डिपेंड होता है तो उसका यहाँ वर्क होता है। इन दिस बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल और ट्रेडर। यहाँ दोनों पार्टी कौन होगी, प्रोफेशनल होगी, दोनों ही सेल्स कर रही होगी, ट्रेडर्स होगी। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस यूनिट इज बिकम इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस यूनिट क्या हो गया है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड हो चुका है। B2B ट्रेडिंग मेक्स इंटरडिपेंडेंसी इजी एंड इफेक्टिव। इंटरडिपेंडेंसी वो क्या कर रहा है, इजी भी हो रही है और इफेक्टिव भी हो रहा है। इट एस्टैब्लिश ई रिलेशन विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और अदर मिडलमैन। ये क्या है, रिलेशन को मेंटेन और एस्टैब्लिश कर रहे हैं विद द सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और मिडलमैन के साथ। Competence can be achieved due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list, management of payment, etc. is increased with the help of B2C, B2B। एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल को सर्विस दे रहा है, इसको बोलेंगे B2B। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक लिस्ट हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट का भी मैनेजमेंट, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि अमेजोन की साइट है, ठीक है, अमेजोन की साइट, आप उस पर परचेज करेंगे, आपके अकाउंट में रुपए चले जाएंगे, आपके अकाउंट से रुपए डेबिट होके अमेजोन के अकाउंट में जाएंगे। तो अमेजोन को कुछ चाहिए तो सही ना, कि कोई पर्सन है जो कस्टमर्स के अकाउंट से रुपए निकाले और हमारे अकाउंट में डाल दे। तो उसमें एक बीच में होता है मिडल, ठीक है, मिडल में एक पर्सन होता है। अभी मेरे को बहुत याद है CC एवेन्यू, आपने नाम सुना होगा, इसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे वो क्या है, अमेजोन को सर्विस देगा, कस्टमर के बैंक में से रुपए उठाएगा और अमेजोन के अकाउंट में डालेगा, इसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। तो CC एवेन्यू है वो बहुत बड़ा नाम है पेमेंट गेटवे का। तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स के अकाउंट में रुपए निकाल के अमेजोन में अकाउंट में डालेगा और अमेजोन के पास से वो क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा, ठीक है। ये मिडल मैन। और दूसरा ये जो मिडल मैन है, देखो अभी ये क्या हुआ, मिडल मैन ने अमेजोन को सर्विस दी, तो ये दोनों ही ट्रेडर हुए कि नहीं, अमेजोन भी ट्रेडर, ये भी ट्रेडर, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। C2C कस्टमर टू कस्टमर, पता है आपको, OLX कस्टमर टू कस्टमर, आप भी कस्टमर, सामने वाला भी कस्टमर, कोई सेलर नहीं, सेलर नहीं। आपके पास पुरानी चीज पड़ी हुई है, आपको बेचना है, तो आप कहाँ जाएंगे, OLX पे जाएंगे। दूसरा क्विकर, दूसरा क्या है, क्विकर, ये दोनों क्या है, कस्टमर टू कस्टमर साइट है। ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर कस्टमर इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या है कि कस्टमर है दूसरे कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, यानी कि कोई ट्रेडर की अगर मानो कि मेरे को गाड़ी बेचना, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी मेरे को बेचना है, मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर को ब्रोकरेज दूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी बेचूंगा। इससे अच्छा है कि मैं OLX पे अपना फोटो लगा दूं, ठीक है, गाड़ी का, उसके फीचर्स लिख दूं, मॉडल नंबर लिख दूं, और बाद में कोई आएगा मेरे को बोलेगा सर आपको गाड़ी बेचनी है, बोलूँगा यार मेरे को बेचनी है, तो वो मेरे से डायरेक्टली परचेस कर सकता है, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर है। इंटरनेट यूजर्स यूजिंग वेबसाइट बिकम सेलर और बायर एज पर द रिक्वायरमेंट।
इंटरनेट यूजर है वो वेबसाइट को यूज करेगा सेलर होने के लिए भी और बायर होने के लिए भी। कस्टमर्स गेट ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विदाउट एनी मिडलमैन, यानी कि ब्रोकर की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ऑक्शन साइट इज ई ऑक्शन, एक ई ऑक्शन साइट है वो भी चल रही। अ कस्टमर हु वांट टू सेल अ थिंग कैन पुट द डिटेल ऑफ दिस थिंग्स ऑन द वेबसाइट फॉर फंक्शन एंड अदर पर्सन कैन बिड फॉर देम। A person who bids the highest by the thing, वो हाईएस्ट बीड लगाएंगे, बोली लगाएंगे और जिसकी जो हाईएस्ट बोली होगी वो परचेस कर लेगा। Beside in this website OLX speaker, a seller put information about these things and selling the price. The buyer negotiate with him and then transaction is proceed. Buyer क्या है वो negotiate करेगा और transaction उसके बाद में proceed हो जाएगा। Okay my dear friends, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? Now got it guys? Sure. Now C2B, कस्टमर है वो बिजनेस से कांटेक्ट करेगा। अभी यहाँ क्या हो जाएगा कि कस्टमर है वो किससे कांटेक्ट करेगा? बिजनेस से कांटेक्ट करेगा। इन दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स customer gets large choice of product or services at suitable and reasonable price. The business unit that provides such services or offer product declare condition for sale and prices of their services or product. This system helps to reduce time of negotiation and increase flexibility of customer as well as business unit. In this, terms of payment is decided by customer. There are more arrangements in economy beside this. If we consider government as an independent body, the following kind of arrangement can be merged. गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये जो सर्विस है वो क्या हो गया? कस्टमर है वो बिजनेस को देगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लो। यहाँ कस्टमर को पूरी सर्विस मिल रही है, ठीक है, चॉइस मिल रहा है लार्ज प्रोडक्ट का। ठीक है, अभी आपको ई कॉमर्स लगाना है तो किसकी जरूरत होगी? रिक्वाइजिट, बराबर। ई कॉमर्स के लिए आपको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको, अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी ये आपको सोचना है। ठीक है, इंटरनेट नहीं है, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता था। C2B ओके, C2B अभी देखा ना, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस, उसका मैं अभी एक एग्जांपल देख रहा था। तो C2B का एग्जांपल क्या? कहीं जो वेबसाइट है वो रिव्यू दिखाती है, कस्टमर्स के रिव्यू दिखाती है सिर्फ। ठीक है, रिव्यू ऑफ कस्टमर्स, रिव्यू ऑफ कस्टमर्स, यानी कि होटल, कोई एक होटल है ताज, तो ताज होटल के रिगार्डिंग कोई कस्टमर का रिव्यू क्या है वो रिव्यू दिखाएगी। तो क्या हो जाएगा कि उस रिव्यू के बेस पर होटल को पता चलेगा कि उसको क्या इंप्रूवमेंट करनी है अपनी फैसिलिटी में। इसको बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस। अभी एक कोरा आपने अगर सुना हो तो कोरा साइट है, उस पर भी ऐसा ही है, वो रिव्यू लगाते हैं। ठीक है, सारे लोग होते हैं, अपने जैसे बंदे होते हैं, वो रिव्यू लगाते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बंदा होता है उसको आंसर करता है, तो उसकी मदद से भी बिजनेसमैन है वो रिव्यू देख सकते हैं। बिजनेसमैन अपने रिव्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, अब आपको ई कॉमर्स करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वेबसाइट चाहिए। तो वो सभी लोगों को पता है कि ई कॉमर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? वेबसाइट। मेरे को ऑनलाइन ट्यूशन क्लास कराना है, मेरे को ऑनलाइन किसको पढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे क्लासेस का क्या होना चाहिए? वेबसाइट। फॉर कंटिन्यूअस ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट इज मस्ट। ई कॉमर्स के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट को डेवलप करना है, यानी कि बनाना। वेबसाइट को क्या करना है? बनाना। बाद में वेबसाइट का क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हो जाने के वेबसाइट को क्या करना होता है, मेंटेन करना पड़ता है। और वेबसाइट को मेंटेन करने के बाद हमें क्या करना होता है, अपग्रेड। जब भी हम कुछ नई चीज अपलोड करते हैं तो उसको अपग्रेड भी करना होगा। जैसे हमारे एप्लीकेशन में 2-4 दिन या 10 दिन या 25 दिन या महीने 1.5 महीने बाद हमें अपग्रेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। इन वेबसाइट, वेब मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, वाइल साइट मीन्स प्लेस। वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस। वेबसाइट इज द एड्रेस ऑफ अ फॉर्म एट वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट का मतलब क्या है, वेबसाइट का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ अ फॉर्म इन वेब, ठीक है, वेब प्लेस। ये जो वेब प्लेस है उसमें जो एड्रेस है फॉर्म का उसको बोलते हैं हम वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट इज द एड्रेस ऑफ अ फॉर्म एट वर्ल्ड वाइड वेब। However, website is not only a physical or geographical address. वेबसाइट का मतलब फिजिकल एड्रेस नहीं है जैसा हमारे यहाँ का एड्रेस है, ऐसा नहीं। वेबसाइट का मतलब क्या होगा कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें किसी फॉर्म कहाँ पे है उसका एड्रेस। बट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फॉर्म विच इज मेड अवेलेबल ऑनलाइन। जो एक प्लेस है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट का वो इंफॉर्मेशन दे रही है ऑनलाइन। अभी आपको क्या चाहिए, दूसरा ऑनलाइन बिजनेस करना है, क्या मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर साथ मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट। कंप्यूटर प्लस मेरे को क्या चाहिए, इंटरनेट, ठीक है। द कंप्यूटर ऑफ द ट्रेडर और कस्टमर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, सेल और बिजनेस एक्टिविटी इन ई-कॉमर्स। इसके रिगार्डिंग मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसके रिगार्डिंग भी मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता है ऑनलाइन शॉपिंग करता, ठीक है। द ट्रेडर आर नॉट फेमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ट्रेडर है वो एक दूसरे के साथ फेमिलियर नहीं होते अपने कस्टमर के साथ, इसलिए हम किसको क्रेडिट नहीं दे सकते। पेमेंट इंस्टेंट चाहिए। इसके लिए आप लोगों को बैंक से क्या निकलवाना पड़ता, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। सो द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइजेस। The buyer feels insecurity in payment before purchase and the seller feels insecurity in providing goods before the receive money. अगर बायर है वो उसको भी इनसिक्योरिटी कब लगती कि अगर वो पेमेंट कर दे और गुड्स नहीं मिला तो, ठीक है। और जो सेलर है उसको इनसिक्योरिटी क्या मिलती कि भाई मैंने इसको गुड्स बेच दिया और पेमेंट नहीं मिला तो। क्रेडिट और डेबिट कार्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड आया और ये प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। The payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after the order of payment is within 7 days. 7 days के अंदर हम ये पेमेंट है उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। These कार्ड आर इम्पोर्टेंट टूल इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के लिए ये कार्ड है क्या, इम्पोर्टेंट टूल हो गया है, ठीक है। अब ये 2 रिक्वायरमेंट आई थिंक आपकी हो चुकी है। अभी आपको क्या चाहिए, इसमें और भी ज्यादा चाहिए था, सॉफ्टवेयर भी चाहिए था। ये लोगों ने शायद इमोशनल होके नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, यानी इसमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए था। यानी कि अमेजोन है ना, अमेजोन उसको ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करना है तो उसको सॉफ्टवेयर भी लगाना होता है। जबकि ये लोगों ने वेबसाइट लिखा है तो उसमें शायद आ चुका, वेबसाइट में आ चुका, बट सॉफ्टवेयर भी अलग एक रिक्वायरमेंट होती, एप्लीकेशन होती, ठीक है। चलो तो 3 थिंग्स यू नीड। तीसरा कौन सा था, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए आपको एक चाहिए वेबसाइट यानी कि एक सॉफ्टवेयर, एक चाहिए आपको कंप्यूटर एंड नेटवर्क और एक चाहिए आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। नाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं ये सभी आप लोग जानते ही है, बस फील कीजिए कि हम ये किया। प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज, एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन रिसीविंग आर इंक्लूडेड हियर। प्री बाइंग, आपको परचेस करने से पहले आप क्या देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। सेलिंग स्टेज, जब आप सेल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, उसका इंफॉर्मेशन देखना है। मेरे को अभी कंप्यूटर परचेस करना, मैं अमेजोन पे जाऊंगा, क्या करूंगा कि भाई उसमें कंप्यूटर के सेक्शन में जाऊंगा, कंप्यूटर के सिस्टम में मेरे को जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो सारे मैं इसको देखूंगा। कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, अभी ये प्रोडक्ट बाय करना और सेल्स करना तो मैं इसका कंडीशन देखूंगा कि भाई बाय करने के बाद कितने दिन में मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। उसका पेमेंट का टर्म्स क्या है, इसमें जीरो कॉस्ट में ईएमआई है कि नहीं है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है कि नहीं। दिस इंक्लूड प्राइस फिक्सेशन एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट,
अगर मेरे को ऑर्डर मैंने कर दिया तो ऑर्डर हो जाने के बाद मेरे को क्या हो जाएगा, गुड्स का डिलीवरी भी हो जाएगा। और पेमेंट किस तरीके से करना है, पेमेंट आप पहले भी कर सकते हैं एडवांस में भी, और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, और आप लोग है वो इंस्टॉलमेंट पे भी गुड्स परचेस करते हैं। अभी तो ये आ चुका है, बजाज फिनसर्व का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो वहाँ आप इंस्टॉलमेंट में भी परचेस कर सकते हैं। अभी अमेजोन खुद पे लेटर का ऑप्शन दे रहा है कि आप हमें इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, लेटर पे कीजिए, पेटीएम दे रहा है, बाद में वो फ्लिपकार्ट दे रहा है। इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबव स्टेज, while this stage include exchange of product and money. प्रोडक्ट देगा, मनी रिसीव करेगा। The process become quick and less expensive if transaction is done online through internet. अगर ये ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन हो जाएगा, इंटरनेट के थ्रू, तो ये प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। दिस एंटायर प्रोसेस इज एक्सप्लेन फ्रॉम बाय कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। Registration by filing in the registration form is a must for a customer who want to purchase online. Online purchase करने के लिए क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसको हम लॉगिन बोलते हैं। साइन अप, साइन इन होता है ना, अमेजोन से कुछ परचेस करना होता है तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद क्या करना होता है, साइन इन, साइन अप करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मीन्स टू ओपन एन ऑनलाइन अकाउंट एंड सेलर साइट। सेलर के साइट पे आपको क्या ओपन करवाना होता है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना होता है। Registration means to sign in for online transaction. आया? For this, the customer need to provide personal detail like name, address, phone number, etc. A password is provided for online transaction. अभी आपके जो Amazon account होगा तो आपका उसका online password भी होगा। The account is protected by this password so that other person cannot log in the account. यानी कि आपके पास पासवर्ड भी होगा तो कोई दूसरा बंदा है वो उसमें लॉगिन कर सकता नहीं। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी चीज पसंद आई उसको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। वी कैन सिलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ट। एक कार्ट में हमें डालना है ना, while shopping online. Shopping cart is a list of products selected by the buyer while shopping online. और शॉपिंग ऑनलाइन करने के लिए वो प्रोडक्ट को जिस भी प्रोडक्ट के सिलेक्ट कर रहा है उसका जो लिस्ट होता है उसको हम शॉपिंग कार्ट बोलते हैं। After preparing a list in shopping cart, an option of payment can be selected thereafter. Shopping cart का ऑप्शन के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट कैन बी मेड इन डिफरेंट मोड लाइक कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसमें ज्यादा हमें जाना नहीं है, पता। मोड ऑफ पेमेंट, सबसे पहले किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है क्या, COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। इन दिस वे द कस्टमर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ मनी ऑन रिसीविंग द गुड्स एज हिज एड्रेस मेंशन फॉर डिलीवरी। डिलीवरी की जो एड्रेस दिया हुआ है, डिलीवरी के एड्रेस पे जब गुड्स आपको रिसीव हो जाएगा तभी कस्टमर को पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। आप सभी लोगों को पता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत किया। चेक, online seller can connect check from the customer. A person who buys goods issue a check to the seller. The seller displays the goods only after the check is credited to his account. अभी क्या मानो कि मैंने एग्जांपल देता हूँ, मैंने राजकोट से कुछ गुड्स परचेस करना था तो उन लोगों ने बोला कि सर आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, तब कोई समहाउ मेरी एप्लीकेशन चल नहीं रही थी तो मैंने उसको चेक भेज दिया। आज चेक भेजा, उन लोगों ने कल उसके अकाउंट में डाला, परसों उसमें से पैसे निकाले और बाद में मेरे को उसने गुड्स भेजा। तो अभी ये नहीं कोई कर रहा है, ये चेक का अभी कोई कर नहीं रहा, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, आपकी बैंक से भी आप लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। नेट बैंकिंग, आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें लॉग इन करके आप उसको पेमेंट कर सकते हो। बैंक also provide the facility of making payment or transferring money through internet to customer in recent time. In this process, the customer transfer necessary amount from his bank account to the account of seller. Goods are dispatched only after the amount is transferred. सेलर के अकाउंट, अपने अकाउंट में से सेलर के अकाउंट में रुपीज ट्रांसफर कर देना, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये भी आप लोगों को पता है। दिस टाइप ऑफ कार्ड आर नोन एज अ प्लास्टिक मनी। इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। यानी कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। यहाँ लिखूं मैं मोड ऑफ पेमेंट में चेक, COD, नेट बैंकिंग, चौथा डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी, क्योंकि कार्ड प्लास्टिक का होता है ना।
Credit card provider bank provide facility of these card are used in large extent in online shopping. Online shopping के यही चलता है. Credit card provider bank provides facility of shopping to the card holder on this credit. An amount to be paid by customer to the online seller is paid by respectively bank. अगर आपको जो भी पेमेंट करना है वो कौन पे कर देगा? On behalf of you बैंक पे कर देगा. Then the card holder pays this amount to the bank within prescribed time. अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो क्या हो जाएगा? आपके भी आप पे बैंक पेमेंट कर देगा और बाद में आपको बैंक को पेमेंट कर देना है. The card holder gets freedom of payment by installment or at convenience within prescribed time. और कार्ड होल्डर को इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे ये बैंक वाले. डेबिट कार्ड होल्डर इज प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अप टू एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट. देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है? सबसे पहले मैं बोलूं डेबिट कार्ड यानी कि आपका एटीएम कार्ड. डेबिट कार्ड का मतलब क्या हुआ? आपका एटीएम कार्ड. यू कैन परचेज गुड्स अप टू बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट. अगर आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उतने तक ही आप गुड्स को परचेस कर सकते हैं. आपके बैंक में जितना भी बैलेंस होगा उतने तक ही गुड्स परचेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा परचेस नहीं कर सकते. क्रेडिट कार्ड में क्या होगा? यू कैन परचेस गुड्स अप टू क्रेडिट गिवन टू यू बाय बैंक. बैंक ने आपको कितना क्रेडिट दिया? अगर बजाज फिनसर्व का कार्ड ले गए तो नियर अबाउट 44,000 या 1,30,000 का आपको क्रेडिट देंगे. यानी कि ये इतने तक आप माल परचेज कर सकते हैं. जी आपने गुड्स परचेज कर लिया विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर आपको ये सारे पैसे बैंक को वापस दे देने हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट. ठीक है. As soon as online transaction is done through debit card, the same amount is debited from the bank account of the card holder. ये आप सब लोगों को पता है. उसके बाद आता है डिजिटल क्रेडिट. दिस इज वन टाइप ऑफ द करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. यानी कि इंटरनेट वर्ल्ड है ना, वहीं पे ही इसका यूज होता है. अभी मैं इसका एग्जांपल दूं डिजिटल कैश का तो आपको मगज में आएगा कॉइन्स. फ्लिपकार्ट में वो कॉइन्स होते हैं सुपर कॉइन्स, इसको बोलते हैं डिजिटल मनी. ठीक है. इसका यूज करके आप गुड्स परचेज कर सकते हैं. और अगर आपको किसी को गेम्स खेलनी है, गेम्स यानी कि आप फ्री फायर पबजी खेलते हैं तो आपको टोकन लेना होता है ना, वाउचर टोकन बोलते हैं ना उसको, वो परचेज करते हैं, वो भी डिजिटल होता है. ठीक है. उन्हीं से ही वो ओपन होता है, अदरवाइज ओपन नहीं होता. This is one type of the currency which exists only in cyberspace internet world. There is no physical existence or form of this type of currency. इसका कोई physical existence नहीं है. But bank provides the facility to the customer to use his real currency in electronic form. But बैंक आपको facility देती है कि आप अपनी जो real currency है यानी कि अपने currency को digital form में convert कर सकते हैं. The customer has to pay the same amount of real money as a digital cash to bank. The bank maintaining form of e-cash send a special software to the customer. Customer को एक special software देंगे. Digital cash can be received through the account of customer. This digital fund can be used for online shopping. इसको आप online shopping पे use कर सकते हैं. ठीक है. अभी कितना है चैप्टर? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. 2 pages still remain. तो क्या करते हैं? कल करना है, कभी करना है? करना है, कल करते हैं. कल करते हैं. क्या बोलता है रोशन? कल. ओके ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश.